गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द सेकंड टाइप ऑफ प्रोटोस्टील विच इज एन एक्टिनोस्टील एक्टिनोस्टील and an actinosteel may be defined as a type of a protosteel in which the centrally located xylem shows radiating arms। ये खास पहचान है बच्चों, ठीक है। रेडिएटिंग आर्म्स बन जाते हैं एंड एट द टिप ऑफ दोज रेडिएटिंग आर्म्स प्रोटोजाइलम ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इस किस्म के स्टील को हम बोलते हैं एक्टिनो स्टील। और इसका इवोल्यूशन कहां से हुआ है, कहां से ये डिराइव हुआ है एक्टिनो स्टील? इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम हैप्लो स्टील, ठीक है बच्चों। जैसे ये हैप्लो स्टील था, ठीक है। इन दिस केस दिस सॉलिड जाइलम और द जाइलम विदाउट पिथ, it shows no radiating arms. But in case of actinosteel, the xylem tissue extends outwards and it shows radiating arms, either 2, 3, 4 or many, ठीक है। And in such cases the terms used for these xylem elements or the stellar system can be like biradiate actinosteel, triradiate actinosteel, ठीक है। Similarly there are tetraradiate, pentaradiate, or for these a common term is used, we can call them as a polyradiate actinosteel. For example, I will draw here a 3 radiating arms। अब आप बताओ बच्चों ये किस किस्म का एक्टिनोस्टील बन गया? दिस इज अ triradiate actinosteel, ठीक है। एज वी फाइंड इन petiole of Adiantum capillus veneris, we will discuss in coming slides। अच्छा, अरे ये तो मैंने यहां दिया हुआ था, है ना, कोई बात नहीं। एक्टिनोस्टील हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम हैप्लोस्टील। इन एक्टिनोस्टील xylem is not in uniformity with phloem, that means xylem shows radiating arms। radiating arms मैंने आपको बता दिया था। what are these? that these are the extra growth of xylem cells toward outside, ठीक है, along radius, उसको radiating arms बोलते हैं बच्चों, ठीक है। and how the xylem elements are not in uniformity with the phloem, जो आगे के स्लाइड्स हम देखेंगे उनमें आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और जो ये रेडिएटिंग आर्म्स है इनके टिप पे प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ each radiating arm, and this type of steel is called an actinosteel। on the basis of number of these radiating arms, actinosteel has been named as follows: if there are 2 radiating arms, such a steel is called biradiate actinosteel, and if there are 3 or more, say if there are 3 radiating arms, the actinosteel becomes triradiate actinosteel, and if there are more than 3, हम लोग इनको टेट्रारेडिएट, पेंटारेडिएट, हेक्सारेडिएट भी कह सकते हैं, लेकिन फिर इनके लिए एक जनरल जैसा टर्म यूज किया गया है, पॉलीरेडिएट। सो इन केस देयर आर मोर देन 3 protoxylem groups, protoxylem groups, more than 3 protoxylem groups or more than 3 radiating arms। why बच्चों? because the protoxylem groups are present at the tip of these radiating arms। again, why? because we know that in majority of the pteridophytes there is exarch condition, means protoxylem groups are facing outwards। if these are facing outwards and these are making radiating arms, so they must be present at the tip of these radiating arms। so this is it बच्चों। आगे के इमेजेस से मैं आपको क्लियर कराऊंगा एक एक करके। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ
root of Adiantum. I don't need to mention the species. Otherwise, okay. Otherwise, this is Adiantum capillus veneris बच्चों. Adiantum capillus veneris का रूट का एनाटॉमी है, जिसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसका सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू. What is this? This is the conduction zone. This is the steel, and we see no pith. That means the type of steel is a protosteel. And again, which type of protosteel? It is an actinosteel. It is an actinosteel. Why? Because there are two protoxylem groups we can see. ठीक है, एक तो ये पहचान हो गया, टू प्रोटोजाइलम ग्रुप्स हैं. दूसरा एक और क्या पहचान हो गया कि द बाउंड्री ऑफ जाइलम इज नॉट रनिंग इन यूनिफॉर्मिटी विद द बाउंड्री ऑफ फ्लोएम. यहां पर फ्लोएम काफी ज्यादा है, इस हिस्से में बहुत कम फ्लोएम है, यहां पर फिर ज्यादा है, यहां पर फिर बहुत ज्यादा है. समझ में आया बच्चों? तो एक्टिनोस्टील के केस में एक तो ये कंडीशन है कि जाइलम और फ्लोएम का बॉन्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा. दूसरा ये है कि जो जाइलम है वो रेडिएटिंग आर्म्स दिखाएगा, रेडिएटिंग आर्म्स शो करेगा, और उन रेडिएटिंग आर्म्स के टिप पे प्रोटोजाइलम ग्रुप प्रेजेंट होगा. प्रोटोजाइलम ग्रुप. ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गया बच्चों. ये किस किस्म का एक्टिनोस्टील बन गया हमारा? बाई रेडिएट एक्टिनोस्टील. देयर इज वन मोर एग्जांपल. ये मार्सिलिया का मार्सिलिया रूट. यस, दिस इज मार्सिलिया रूट का स्टीलर सिस्टम. हम बाहर के स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, स्टील देखेंगे. दिस इज एंडोडर्मिस, दिस इज पेरिसाइकल, दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम. अगेन जाइलम इज शोइंग टू रेडिएटिंग आर्म्स. ठीक है, एंड जाइलम का बाउंड्री और फ्लोएम का बाउंड्री यूनिफॉर्मिटी में नहीं है. यहां पर बहुत ज्यादा फ्लोएम नजर आ रहा है, यहां पर कम है, एटसेट्रा. ठीक है बच्चों. सो दिस इज अगेन वन मोर एग्जांपल ऑफ actinosteel. Again here it is biradiate actinosteel. Sometimes there are three radiating arms. For example, this is the steel of this portion, otherwise this is the transverse section of petiole. Transverse section of petiole of adiantum. Adiantum. Here again what we see, this is endodermis, this is pericycle. That means this portion or this centrally located portion is the steeler system. Because we can see no pith in the center, that means it is protosteel. And we see three radiating arms formed by xylem elements. Three radiating arms. That means it is a tri-radiate actinosteel. And how it has been identified? Because we see that at the tip of each radiating arm, the protoxylem groups or protoxylem elements are situated. ये याद रखना है बच्चों, ये हमारे सिलेबस में भी है एडियंटम. तो हमको टेरिडोफाइट्स के केस में एनाटॉमी में भी हमें डिटेल में देखना है बच्चों. समझ आ गया बच्चों? तो दिस इज ट्राई रेडिएट एक्टिनोस्टील. ठीक है, एग्जांपल इज पिटियोल ऑफ एडियंटम. ये ओरिजिनल व्यू है बच्चों, ये हम लोगों ने खुद सेक्शनिंग किया था. ठीक है, तो ये ओरिजिनल इमेज है. ठीक है, दिस पोर्शन इज सेंट्रली लोकेटेड स्टील, दिस पोर्शन इज एंडोडर्मिस, दिस पोर्शन इज पेरिसाइकल, देन दिस ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश कलर portion is flowing, and centrally located red color is a xylem. What we see here, again we see three radiating arms, 1, 2 and 3. So again this is the anatomical structure showing steeler system of a petiole of Adiantum capillus veneris. And the steel present here is a tri-radiate actinosteel again. And how it has been identified? By the presence of a protoxylem groups at the tip of each radiating arm.
my dear students. This is one more example where we can see more than 3 or a polyradiate actinosteel. In fact, it is a tetraradiate actinosteel and it is found in the root of equisetum. Root of equisetum. What we see here, this is endodermis. This portion, pinkish portion is pericycle. This orange portion is phloem and centrally located red colored xylem. One thing I want to tell you about the colors. Colors have nothing to do with these structures, these different tissues. ठीक है बच्चों, ये सिर्फ आपको आसानी के लिए मैंने डिफरेंट कलर किया है. अदरवाइज कोई एंडोडर्मिस पीले कलर का नहीं होता है, जाइलम कोई रेड कलर का नहीं होता है मेरे बच्चों. ठीक है, ये याद रखना है. ठीक है, हियर व्हाट वी सी अगेन एक्सार्च कंडीशन, रेडिएटिंग आर्म्स एंड 4 रेडिएटिंग आर्म्स. हालांकि यहां पर एक एक मेटाजाइलम दिखा है, एक एक प्रोटोजाइलम, ऐसा तो नहीं होता है. वेरी फ्यू आर देयर. ठीक है, few number of xylem elements are there. This is centrally located metaxylem element and these are 4 protoxylem groups which make a tetraradiate structure in an exarch condition. That means protoxylem groups are facing outwards. So this type of steel becomes a tetraradiate actinosteel, or simply we can see polyradiate actinosteel. I have one more example from Lycopodium serratum. You need not to remember the name of a species. Lycopodium के केस में जो स्टील प्रोटोस्टील्स के टाइप्स हैं बड़ा डाइवर्स है बच्चों. लाइकोपोडियम के कुछ स्पीशीज में एक्टिनोस्टील है, कईयों में मिक्स्ड प्रोटोस्टील भी नजर आता है, कईयों में प्लेक्टोस्टील भी नजर आता है. खैर यहां पर हम सिर्फ एक्टिनोस्टील को डील कर रहे हैं. तो this portion is the steel of a Lycopodium species, stem of Lycopodium, because in aerial stem in Lycopodium there is no underground stem. ठीक है बच्चों. So this is it. What do we see here? We see more than 3 or many radiating arms. That means the type of actinosteel is a polyradiate actinosteel. Polyradiate actinosteel. Why? We can see 1 radiating arm, 2 radiating arm, 3 radiating arm, 4, 5 and 6. ये जरूरी नहीं है बच्चों 6 ही हो. ठीक है, ये 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, but these are many. So in this case it is called polyradiate actinosteel. ठीक है बच्चों. और एक और पहचान क्या है कि जो जाइलम का बाउंड्री है और फ्लोएम का बाउंड्री है ये मैच नहीं कर रहा है, ये यूनिफॉर्मिटी में नहीं है बच्चों. ये ब्लू कलर का टिश्यू है, दिस इज फ्लोएम. इस जगह पे आप क्या देखोगे कि बहुत कम फ्लोएम है. ठीक है, और इस जगह पे हम देखेंगे बहुत ज्यादा फ्लोएम है, फिर यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है. ठीक है, तो ये कंडीशन भी क्लियर हो गया. देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी विद द बाउंड्री ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. सेकेंड कंडीशन हो गया देयर आर रेडिएटिंग आर्म्स एंड हियर इन दिस केस देयर आर मेनी रेडिएटिंग आर्म्स. और तीसरा जो कंडीशन है एक्टिनोस्टील होने के लिए वो ये है कि द प्रोटोजाइलम ग्रुप शुड बी प्रेजेंट टुवर्ड्स आउटसाइड और एट द टिप ऑफ ईच रेडिएटिंग आर्म. तो ये हमको छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन में सेल्स नजर आ रहे हैं. दीज आर प्रोटोजाइलम ग्रुप्स एंड दीज आर लार्जर वंस और मेटाजाइलम ग्रुप्स. दैट मींस अगेन देयर इज एक्सार्च कंडीशन. ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं कि एक्टिनोस्टील अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों. ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है. अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, वैसे सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं. ठीक है, जो स्टीलर सिस्टम है आप लोग मेरे ख्याल में मास्टर डिग्री में भी कंटिन्यू करते हो. मास्टर डिग्री में भी स्टीलर सिस्टम पे कुछ टॉपिक्स आपको स्टीलर सिस्टम के रूप में शायद सिलेबस में होगा, आई थिंक, है ना. तब तक सेफ रहिए, तब तक के लिए बच्चों. ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए बच्चों. थैंक यू वेरी मच.